नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और अपनी सहयोगी टीना झा के साथ आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, जो संसद का विशेष सत्र पर हमारा ये खास कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है, भारत अमृत काल का उत्सव मना रहा है। 75 साल हमारी संसदीय जो लोकतंत्र की यात्रा है उसको पूर्ण हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र हमारा स्वभाव है, हमारे आचरण और व्यवहार में है लोकतंत्र। हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम हमारे मजबूत लोकतंत्र ने किया है। हमारे लोकतंत्र के पल पल का साक्षी है हमारा संसद भवन। 8 सितंबर को हमारे पुराने संसद भवन में आखिरी बैठक हुई। दशकों का इतिहास और मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं की गवाह रही है पुरानी संसद की यह इमारत। 144 खंभों पर खड़ी हमारी संसद की पुरानी बिल्डिंग आज़ादी से अमृतकाल तक इस इमारत ने हिंदुस्तान बनते देखा, भारत को अपने पैरों पर खड़े होते देखा है। करोड़ों भारतीयों की आवाज बनी, नई इबारत लिखी। इस भवन को अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन भारत के भाग को बनते और संवरते देखा लोकतंत्र। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, ये लिखा है, हमने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, लेकिन शायद इस इमारत ने इसको भारत का, भारत से भारत के लिए कहा है, बनाया है। इसको लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है, सही कहा गया है। ना जाने कितनों की उम्मीदों और अरमानों को पंख दिए हैं हमारी इस संसद ने। टीना झा जी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और इसके कई माने हैं, कई संदेश हैं। Absolutely, you're right, Manoj. Hello and welcome viewers to this special broadcast on Sansad TV. So, as my colleague rightly said, as we embark on this journey from a glorious legacy to a prosperous future, today, the first day of the 5-day special session began. The first day of the sitting marked the 75 years of the parliamentary journey. Right from the forming of the Constituent Assembly, both the Lok Sabha and Rajya Sabha discussed the achievements, experiences, memories and learnings over the last 75 years. Prime Minister Narendra Modi opened the discussion in the Lok Sabha, saying today is an occasion to recollect and reminisce the parliamentary journey of 75 years of India before the proceedings shift to the newly inaugurated building. The Prime Minister also pointed out that even though the decision to construct this building was made by those who ruled over us for 200 years, it was the hard work, dedication and money spent by Indians that went towards its development. The Prime Minister said in the journey of 75 years, the Parliament has created the best of the conventions and traditions, which has seen the contribution of all and witnessed by all as well. So even though we are shifting to the new building, the old one will continue to inspire the coming generations, as it is a golden chapter of the journey of Indian democracy. Also in the Rajya Sabha, Union Minister and Leader of the House, Piyush Goyal, initiated the discussion. He highlighted the achievements of the 75-year journey of India's parliamentary democracy, and at the same time he expressed hope that as we embark on a new journey, all members of parliament must work together and play an important role in taking the country forward at a much faster pace. So we'll focus on some of the significant points made by members of different political parties while taking part in the discussion on 75 years of parliament. We'll also analyze what historical achievements we've seen in the parliament, what are the learnings over the past 75 years that we carry forward as we embark on this new journey to the new parliament building. We have two special guests joining us in the studio. Very delighted to have with us Mr. Bhartrihari Mehtab, Member of Parliament, Lok Sabha. He represents the BJD, and Mr. Jagannath Sarkar, Member of Parliament, Lok Sabha. He represents the BJP in the lower house. Thank you to both our guests for joining us on this special telecast on Sansad TV. जी बिल्कुल, और आज का दिन जैसा कहा कि ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक ये यात्रा है, लोकतंत्र की यात्रा, भारत के संसदीय लोकतंत्र की यात्रा, जो नूतन को पुरातन से, उसके सह अस्तित्व को जोड़ती है, उसका एक आदर्श उदाहरण है। इस भारत की जो संसदीय लोकतंत्र की यात्रा है, उसके बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में विस्तार से बताया। उसके क्या मायने हैं, क्या संदेश हैं, ये भी देश और दुनिया को बताया कि भारत का लोकतंत्र किस तरह आगे बढ़ा है, किस तरह मजबूत हुआ है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए
और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। So quite an impactful speech there by Prime Minister on the last day of working in the old Parliament building. Tomorrow onwards, the proceedings will shift to the new Parliament building. Let me get the opening remarks from our guests who are joining us in the studio, Mr. Mehtab and Mr. Sarkar. Both of you are members of the Lok Sabha. Mr. Mehtab, to you first. Your first reaction to the Prime Minister's speech, in which he covered various aspects of the glorious journey over the past 75 years. And the Prime Minister also did mention how our forefathers have set a direction of growth for us that we are following today. He didn't forget to thank the support staff that makes the proceedings seamless. What do you think of the Prime Minister's speech today? Prime Minister, in his 1 hour long speech, practically covered everything. He set the tone for discussion today. It was actually a valedictory function, like a valedictory function that one says when one leaves the university. We are only crossing the street to another edifice. This edifice, which have been functioning since 1927, the British of course built it, but as the Prime Minister very rightly mentioned, it is the toil and money and the labor force of all Indians who built this great edifice. It's so majestic, magnificent, and even we are going to complete 100 years of this Parliament House in another 4 years' time. But it, from the facade of the building, the look from outside is very grandeur. So in that respect, many people feel that perhaps it was all right. Why
should we have a new building for our parliament? But anyone who enters into it, who functions inside that building, knows what type of difficulty one faces. And that is the reason why, despite all difficulties, the support staff, when we say support staff, it encompasses everyone. The Secretariat of Parliament. Even he mentioned about the gardener who maintains the garden around the lawn around the Parliament. Because of his minute observation, he did not miss anyone. And in that respect, this is the time when you are leaving a house for a new house, you give your thanks to everyone. That's what he did. And also he mentioned about the Imperial Legislative Assembly. We used to call it as Central Assembly, and that is the name. For 20 years the British used it. And just imagine, the British built this great edifice in 1927 and had to leave the country within 20 years. They don't have such a magnificent building even in London, nor in any other colony of British Empire. It was India's money, it was India's expertise that was utilized for building this. Of course, we say the British have done it, but I believe the standard that they set, which has been evolved in Britain for more than 200 or 250 years or more than that, we inculcated the parliamentary democracy instantly. And within 75 years, if one looks in the hindsight, what progress we have made. The progress that Britain had made in 100 years or 200 years, we could achieve it within 20 years. That is the beauty of our resilience, and that should be praised, which the Prime Minister did in his speech. Right. जी बिल्कुल। और इस समय मेरे सहयोगी पवन शर्मा इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। पवन जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। खास तौर से हमने देखा जिस तरह से सदन में चर्चा हुई और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने जिस तरह से भारत की जो संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा है उसके बारे में अपने संस्मरण, अपनी यादों को साझा किया और देश आगे कैसे बढ़े, एक साथ लोकतंत्र कैसे आगे और मजबूत हो, इसको लेकर भी अपने अपने सुझाव सदन में सदस्यों ने रखे। कैसा रहा आज का दिन? क्या कुछ खास देखा आपने? क्या कुछ खास जानकारी आपके पास है? मनोज जी, ऐतिहासिक जो है आज का दिन तो रहा ही, कल का दिन भी बहुत ऐतिहासिक है जी। आज का दिन इस लिहाज से ऐतिहासिक है क्योंकि जो संसद का जो पुराना भवन है, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के चैम्बर है, जहाँ पे कार्रवाई चलती रही है अब तक, वो आज वहाँ पे आखिरी कार्रवाई थी, मतलब आखिरी दिन था। इसके बाद जो है अब जो संसदीय कार्रवाई होगी वो संसद के नए भवन में जो लोकसभा का नया चैम्बर है और राज्यसभा का जो नया चैम्बर है वहाँ पे होगी। तो इस लिहाज से इस लिहाज से ये ऐतिहासिक है। जहाँ तक बात करूँ इस पुरानी बिल्डिंग की मनोज जी, तो मैं 1921 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, 1927 में ये बनकर तैयार हुई और पिछले 96 वर्षों में, क्योंकि अगर 1927 से लेकर यात्रा इसकी देखें यहाँ 2023 तक, भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, और फिर भारतीय लोकतंत्र की, गणतंत्र की यात्रा 75 वर्षों की पूरी हो चुकी है और हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये यात्रा लगभग अगर इस संसदीय भवन की करें तो वो 96 वर्षों की है। तो 96 वर्षों में देश के लिए बहुत सारे कानून यहाँ बने हैं, उसका जिक्र आज पूरे भिन्न भिन्न अपने सांसदों ने अपने अपने वक्तव्यों में किया और उन्होंने बहुत सारे भावुक पल भी उन्होंने कहा और उन्होंने कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए और गणतंत्र के लिए ये जो बिल्डिंग है ये बहुत शुभ रही है। बहुत सारे भारतीय इस देश ने इसी में यहीं पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से याद किया उन्होंने। प्रधानमंत्री की अगर बात करूं तो भगत सिंह जी से याद करके और GST तक और अब तक G20 तक की बातें उन्होंने की। उन्होंने विशेष बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो यही थी कि इस संसद ने 7500 से ज़्यादा सांसद देखे हैं मनोज जी, 600 से ज़्यादा महिला सांसद जो हैं यहाँ पे हुए हैं। उनकी आवाज़ जो है संसद के दोनों
कक्षों में जो चैम्बर हैं उसमें उसमें गूंज रही है कि वो इसलिए उन्होंने नाद ब्रह्म का नाम दिया उसको, कि वो आवाज़ गूंजती रहेगी और जो भविष्य की हमारी पीढ़ियाँ भी आएंगी वो भी उनसे सीखती रहेंगी, क्योंकि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड चीज़ें रहती हैं। हर एक जो सांसद होता है उनका भाषण जो है वो डॉक्यूमेंटेड रहता है, टेक्स्ट के रूप में भी, ऑडियो के रूप में भी और अब ऑडियो विजुअल के रूप में भी। तो भावी पीढ़ियाँ देख सकेंगी कि हमारे जो सांसद रहे हैं, हमारे जो नेता रहे हैं देश के, जिन्होंने जनप्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने अपने क्षेत्र की आवाज़ को लोकतंत्र के इस मंदिर में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में उन्होंने उसको रखा, और वो सारा सब कुछ भी, जो कुछ भी हो रहा था वो जन कल्याण के लिए हो रहा था, क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना हुआ सिस्टम है, तो उसी को परिलक्षित करता है। और गर्व की बात ये भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और अभी G20 के दौरान हमने देखा कि जितने भी देश थे G20 में शामिल आए थे, तो उन्होंने भी भूरी भूरी प्रशंसा की, और भारत से सीखने के लिए वो आते हैं, भारत को वो अपना रोल मॉडल मानते हैं इस दृष्टि से। तो ये बड़ी बात है इसके लिए। तो बाकी जितने भी सांसद थे उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। विपक्ष की तरफ से अपने मुद्दे रहते हैं विनोद जी, तो उन्होंने अपने मुद्दे रखे। उन्होंने बात ये भी करी कि बहुत सारे मुद्दे हैं, तो सभी पक्षों की ओर से ये भी था कि महिला आरक्षण का जो विधेयक है, जो लंबित है लंबे समय से, विपक्ष की तरफ से, ज़्यादातर सांसदों की तरफ से यही कहा गया कि वो भी आना चाहिए इस विशेष सत्र में, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिनों का, और उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये विपक्ष की तरफ से मूल रूप से बात सामने आई कि जो उनकी तरफ से मांगे वो विषय भी इसमें शामिल हो, उन पे भी चर्चा हो, ये मांग उस तरफ से आई। मनोज जी। जी बिल्कुल, पवन जी आप बने रहिए हमारे साथ। जगन्नाथ सरकार साहब, आज प्रधानमंत्री जी ने भी विस्तार से बताया जो 75 सालों की हमारी यात्रा है, और जिस पुरानी इमारत में आज आखिरी कार्रवाई हुई सदन की, उसका जो संदेश है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने एक बात तो कही कि भारत का लोकतंत्र इन 75 सालों में मजबूत हुआ है। संसद की इस यात्रा में जो गरीब है, किसान है, आम आदमी है, उसकी उम्मीदों को भी इस सदन ने पूरा किया। देश मजबूत हुआ, कई उपलब्धियां देश के नाम हैं। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, ये हमारा जो देश जितने आबादी था पहले, अभी बहुत गुना बढ़ गया। तो हर प्रतिनिधि वो जनसंख्या अनुसार तो आज बढ़ाना चाहिए, क्यों अभी 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गया। इसलिए वहाँ जा प्लेसमेंट है अभी वो ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भी ये नया बिल्डिंग को होना चाहिए। इसका बाद जो टेक्नोलॉजी भी बहुत सारी चेंज हो गया। आज पुराना भारत सरकार नया भारत बन रहा है, इसका काम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, कदम आगे बढ़ रहा है हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत। तब ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले जो जितने लैंग्वेज में वहाँ डबिंग सारी सिस्टम था, अभी बहुत गुना बढ़ गया। तो सारी चीज़ सुविधा ये नया जो बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ सभी मिलेगा। इसलिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो देश है, हमारा देश ये जो वर्ल्ड का एक बढ़िया लोकतंत्र है। यहाँ जो आपका टैगलाइन है, ये लोकतंत्र हमारा स्वभाव में है। तो हमारा जो हिस्ट्री उद्घाटन करके देख सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान किसी को देश इतना बड़ा था, हिम्मत वाला था। सारी जो नया सोच सभी हमारा पुराना दिन का
ये भीत भी मजबूत है अभी। Absolutely. That's a very वहाँ important से point. आगे बढ़ रहा है, That's a लेकिन very कभी important किसी को point that अटैक you've नहीं made. किया I- कि I- हमारा लोकतंत्र। I would like to take that to Mr. Mehtab. You know, the fact that there was a need for a new parliament building to make it more representative. Of course, we wanted to shift from an old to the new, to also cater to the growing population in terms of adaptation to newer technology. That was very, very important. But in terms of significance, in terms of symbolism, because we are stepping, we've already stepped into the Amrit Kal, and our thrust is we want to be self-reliant, as Atmanirbhar as possible. So from that aspect, how significant is this move, shifting from the old to the new, with a new vision, with a new direction? There were certain milestones in the course of your journey. When you reach 25 years, we celebrate Silver Jubilee, and India as a nation also celebrated Silver Jubilee of our independence in 1972. Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister. The census, जैसे जगन्नाथ बाबू ने अभी कहा, का रिपोर्ट तब तक तो आ चुका था, पर इलेक्शन हमारी 71 में होगी. We held our election in 1971 for Lok Sabha, along with certain Vidhan Sabhas. And the redrawing of our assembly or parliament segment was given effect to certain states in 1973, 74, and in 75, 76 there were no elections, and ultimately in 1977 the new or enhanced Lok Sabha was created, and to create more seats, more benches were added, not only in Lok Sabha but also in Rajya Sabha. Similarly, when we reached 50 years, पड़ाव जब पहुंचा, हमारी गोल्डन जुबली हमारी हुई, तब कोई increase in seats हुई नहीं. But when we go back to the history, when we got independence, it was 300 some odd seats in Lok Sabha in 1952. Then it went, another 100 or 80 seats were added to it, that subsequently we reached 545. 2 were nominated. Now those 2 seats have been abolished, the Anglo-Indian reservation for Anglo-Indian community. So we have 543 seats. And as has been said by Mr. Sarkar, with a growing population, the constituency of every Lok Sabha invariably has been divided into 18 to 20 lakhs of people. And that's quite a very big number. And when you compare it to with other parliamentary democracies, they feel very perturbed that how a member is serving such a large constituency. And that is the necessity today, that it was felt that we should have a new building. But that was not the only reason. The other reason was the technological advancement that has happened. Absolutely. In between. We should also provide those gadgets to every members. During our visit, be it during Somnath Chatterjee's time from 2004 to 9, जी when the Lok Sabha or Sansad channel came into existence, or subsequently Mira Kumar's time and then Sumitra Tai's time, it was always felt when the members visit other parliaments under the leadership of the Honorable Speaker, we could see the ultra modern technology that is being used in the house. Here it was impossible, because this house was built in 1927. Electricity that time was, air conditioning was not available. Right. And that was the central assembly, as we call it. The central hall was the library. There was a Prince Chamber, which today is the reading room. The Lok Sabha, of course, was the central assembly. And when India gained independence, the Rajya Sabha that we see today was the Supreme Court, because Supreme Court structure came after that, a little later. So if this is the situation, it was quite impossible to add. Upgrade within the existing infrastructure. But they did during 70s or late 60s and 70s. Another floor was added on the top,
which was actually weakening the structure. It was necessary to expand. Members were not provided any rooms. The political parties also, all political parties were not provided with independent rooms. Cabins were provided in the third floor. So it was impossible to function. And the other aspect which I mentioned today in the deliberation is, we don't sit in a relaxed way in the house. We always are on the edge. Right. We have to sit like this. And it's very difficult, and there are no desks also in front of us except the two benches in the front row. The other are just benches. You're right, and especially when there's a full house, the discomfort is clearly visible. I sit in a bench where 5 members sit, but hardly 3 members can sit comfortably. But we have to adjust ourselves, we have to give our vote, and all our elbows also touch each other. But that's not a proper way. But now in this new Parliament House, adequate precaution has been taken. Movement of members and staff also, adequate space is there. Every political party is being provided. So also the members are also going to be provided, that's what I learned. Of course, we will be missing the central hall, and there is no central hall in the new structure. Right. But there are courtyards and food courts. And another major thing is, in this parliament, means the parliament which has already completed 96 years, जी AC was not the priority. Providing air condition was not the priority. That's why we have very big verandas all around. And also there are big courtyards in 3 major courtyards in between. But in the new parliament, it is fully air conditioned. Okay, Mr. Sarkar, the fact that, for old members of parliament, there will always be that emotional connect, that nostalgic feeling shifting from the old to the new building. Yours was the first term, of course, you've built memories over the last 4 years, but how enthusiastic are you about entering into this new parliament building, which has state-of-the-art facilities, the modern technologies that Mr. Mehtab said were missing in the old parliament building, and also the most important fact that we've started this journey of Amrit Kal and we begin with something that we have created ourselves? ये जो मेमोरी है ना, हमेशा वो वेदनादायक होता है। जी, ये याद रहेगा वो जो घटा। हमारा ज़्यादा दिन संसद का हिस्ट्री नहीं है। मैं नया एमपी 5 साल भी अभी पुराना नहीं हुआ, तो इस बारे में जितने हमारा स्थिति यहाँ बना वो तो हमेशा याद रहेगा। वो जो बोला सेंट्रल हॉल नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो हमेशा याद पहले तो होता ही है। तो कुछ दिन जाने के बाद सभी तो भूल जाते हैं, ये भी हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। तो नया फैसिलिटीज़ तो बहुत चाहिए। क्यों, यहाँ क्या होता है, हर रोज़ इतने टाइम एक ही जगह में कंजेस्ट एरिया 2 कन्हैया लग जाता है एक का साथ एक, तो फ्री मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए बीच बीच में सेंट्रल हॉल में जाता है, कोई खाने के लिए घर जाता है, कोई रेस्ट लेने के लिए कुछ टाइम होना चाहिए। तो इसलिए जो संसद भवन नया बन रहा है, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए ये मैनेजमेंट बनाकर ये नया जो प्लेसमेंट हो रहा है, ये अगले दिन बहुत अच्छा होगा। तो हम सब जितने दिन जाएगा वो तो पुराना सिटी भूल जाएगा, वहाँ आने का तो मौका मिलेगा। जिस टाइम उसका अंदर घुसेगा तब भी वेदनादायक होगा, तब भी ये हमारा देश के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी वहाँ जोड़ दिया, तो कोई चीज़ हमारा ज़रूरी है तो वहाँ से ही मिल जाती है, हमारा टेबल में ही मिल जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए इस सिस्टम भी आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, ये सही डिसीजन है, यही मेरा। जी बिल्कुल, आधुनिक सुविधाओं से युक्त
संसद का जो नया भवन है जाहिर तौर पर वो कई मील का पत्थर साबित होगा अगली जो लोकतंत्र की आगे की भारत की जो यात्रा होगी। लेकिन जो यात्रा रही है लोकतंत्र की, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने और क्या कुछ सदन में कहा आज, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान-3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष जी। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान की बात की और एक सांसद सदस्य के रूप में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अब तक की जो यात्रा रही है उसका भी उल्लेख उन्होंने किया कि किस तरह उनका एक श्रद्धा भाव संसद के इस भवन के प्रति, लोकतंत्र के प्रति रहा है, उसके बारे में बताया। जाहिर तौर पे जब भी बात संसदीय लोकतंत्र की होती है तो उसमें सांसद सदस्य की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। संसदीय व्यवस्था और जनता की कड़ी को जोड़ने में जनप्रतिनिधि की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सदन के भीतर कानून बनाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, तो जनता से संवाद और लोकतंत्र से जोड़ने की भूमिका भी उनकी होती है। भर्तृहरि मेहताब साहब, मैं इस सवाल को आपसे जरूर समझना चाहूँगा, क्योंकि जनता उम्मीद, ठीक है, जनता की उम्मीद लोकतंत्र से होती है, लेकिन लोकतंत्र में जो सांसद सदस्य है, जनप्रतिनिधि है, उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? असल में जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं उनके जरिए जनता चाहती है कि अपनी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचे। जो शासन तंत्र चलाते हैं उनके पास उनकी बातें पहुंचे, उनकी असुविधा पार्लियामेंट में गूंजे और जो वो चाहते हैं उसका समाधान भी पार्लियामेंट से निकले।
इस हिसाब से इस हिसाब से प्रधानमंत्री एक अच्छा शब्द कहा जो हम भी बार बार जी हमारे सांसदगण भी कहते हैं और जो पत्रकार लोग भी लिखते हैं आप जैसे, कि ये गणतंत्र का मंदिर है। मंदिर का असल स्वरूप क्या है? मंदिर में विग्रह है, मंदिर में पुजारी है, मंदिर में भक्त है, मंदिर में घंट है, आरती होती है, ये सारे चीज़ होती है, तब तो मंदिर बनती है। और एक अभ्यास में भी आ जाता है कि हमको मंदिर जाना है। कभी कभी आप जब रास्ते में जाते हो तो घंटा की ध्वनि आपको सुनते हो तो आप कहते हैं हाँ सारे चीज़ चल रहा है। तो ये इसी तरह एक मंदिर है जहाँ लोगों का कल्पना, वास्तवता और अधिकार की घंट ध्वनि होती है, और जो लोग घंट ध्वनि करते हैं वही सांसद हैं, और जिनके बाहू में ताकत है वो ज़्यादा जोर से बजाते हैं। And one thing that now as common citizens we will also hope is there will be better facilities, there will be better technology, but will there be better outcomes? We need to work together. The Vision 2047 is something that is very ambitious. All parties have to work together, and that better outcome has to be visible in the new parliament Yes, building. it depends on two things. Better outcome, I hold that view very strongly, has been stiffened because of passing of a law or addition of 10th schedule in our constitution, which actually where the whip has become a terror for any elected member. In that respect, members are not in a position to express their opinion independently. It is always the party's decision which gets reflected in their speeches inside the house, because that is what one says inside the house is magnified and goes to the public through media. So in that respect, the behavior, the utterances of every member is controlled. So that's why many a time the discussion, deliberation becomes sterile. And to bring the best out of every member, it's not the language and the words one uses, but it is the intelligence of a member that needs to be seen, and that is what happening in other parliamentary democracy. The other aspect is the party. For the first time, of course, party got enshrined in the constitution with the 10th schedule. Earlier party was never mentioned, or nowhere it is mentioned in constitution. So party means the leader or a group of persons who lead the party, they decide. Right. It's not the individual members who decide. So in that respect it is controlled. Second thing is the party selects the members who will be contesting the election. So if the party selects good members, because when we say good, it has different connotations for different people. Who can win, who can spend money, who is popular, who can deliver, number of things come in that goodness. So in that respect, these are the two aspects. If it is done in a right way, I believe the performance inside the house will Okay, improve. okay. Before we head into a break, एक आखिरी सवाल जगन्नाथ सरकार जी आपसे। आपका ये फर्स्ट टर्म था, आपने भी कई तरह की चुनौतियां देखी हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हाउस में स्टेलमेट हो जाता है और जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं कर पाते हैं। अब जब नए सदन में जा रहे हैं तो ऐसे क्या लेसन्स हैं जो हमने सीखे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार फिर चुनकर आएँ, जो अगली बार आप इन चुनौतियों से सीखकर ये सुनिश्चित करें कि जिन मुद्दों को आपको उठाना है सदन में, जिसके वजह से जनता ने आपको वोट दिया है, वो आप सुचारू रूप से उठा सके। ठीक, ये महत्वपूर्ण बहुत ये बात है, अच्छा बात है। ये लोकतंत्र में सभी तो रेगुलेटेड भी होता है, तो जितने मौका मिलते हैं विपक्ष में हल्ला कर रहे हैं। मेरे याद में है 2-4 घटना, कोई मेरा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन मौका भी मिला, लेकिन हल्ला के लिए उठा नहीं पाया। तो हमारा जो बोलने वाला था वो मौका नहीं मिला, जनता के तक
वो नहीं पहुंचाया, तो मेरा तो दुख है ही। कोई बारे में बोलने के लिए मुंसा भी था, लेकिन मौका नहीं मिलते। तो आज यह आखिरी दिन था। इस दिन में तो बहुत सदस्यों की मनसा था मैं कुछ बोलूँगा, लेकिन बोलने का मौका नहीं है। बिल्कुल, और ये काफी तो मुश्किल है कि अब कोई चुनाव सर पर है। अच्छा कानून आया, मेरे बहुत पॉइंट अच्छा पॉइंट था, लेकिन वो बोलने के मौका नहीं मिला। बिल्कुल, तो अब मन से चुनाव जब आप ये होना जब बिल्कुल चाहिए। सर पर है, तो अब आप लोगों के बीच जाकर पहली बार उनके मुद्दे नहीं उठा पाए, तो अगली बार के लिए वो आप पर कैसे विश्वास करेंगे? एक बड़ी समस्या है मनोज जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सांसद सदस्य भी चाहते हैं सदन चले और उसमें जितनी चर्चा हो, प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होती है, तो सांसद सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा तब उठता है जब सदन नहीं चलता है। आज जब ऐतिहासिक चर्चा इस मुद्दे पर राज्यसभा में हो रही थी, तब भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने इसी बात पे जोर दिया, अच्छा होगा सदन में चर्चा हो, मुद्दों पर बात हो, सदस्यों को अधिक से अधिक बोलने का मौका मिले, इस बात पे आज भी जोर दिया। और उन्होंने कहा उस पर पार्टी पर ना चला जाए कि पहले सदन नहीं चलने दिया जाता था तो सदन को आगे भी इसी तरह से अवरुद्ध किया जाए या रुकावट पैदा की जाए, क्योंकि सदन चलता है तब आम जनता की बात होती है, देश के मुद्दों पर बात होती है, समाज की बात होती है। लेकिन संसद का यह विशेष सत्र है, और विशेष सत्र है तो खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। भर्तृहरि जी, सरकार साहब, आपने हमसे बात की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको सीधे लिए चलता हूं अपने सहयोगी पवन शर्मा के पास, जो इस समय भी संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। पवन, संसद का जो विशेष सत्र है वो खास तौर पे बहुत संक्षिप्त है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ अगले 3-4 दिनों में होने वाला है? क्या कार्यक्रम है? क्या एजेंडा है? जी मनोज जी, जहाँ तक बात करें, विशेष सत्र है, बुलाया गया है 18 से, आज शुरू हो गया, 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। और जैसा आपने कहा कि इसमें क्या क्या रहना है, ये भी बिल्कुल साफ हो गया है। आज जो है ऐतिहासिक दिन इस लिहाज से था क्योंकि जो संसद का पुराना भवन है वहाँ पे जो कार्रवाई होती थी वो आज उसका अंतिम दिन था। अब जो कार्रवाई कल है वो नए संसद के नए भवन में होगी। लोकसभा की कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो कल 1:15 बजे कार्यक्रम उस कार्रवाई वहाँ पे लोकसभा में शुरू होगी और राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 बजे शुरू होगी, जैसी एडजमेंट आज हुई है। इससे पहले 11 बजे कल जो है केंद्रीय हॉल में सभी सांसद इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है कार्यक्रम होगा और उसके बाद वो सभी के सभी सांसद जो हैं लोकसभा की तरफ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल हॉल नहीं है जैसा कि पुराने संसद भवन में है। तो संसद के नए भवन में लोकसभा में ही संयुक्त बैठक होगी, तो उस तरफ को सांसद बढ़ेंगे। ये कल का कार्यक्रम रहने वाला है। जहाँ तक बात की आपने कि क्या क्या होना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो बिजनेस से स्पष्ट है कि सबसे पहली बात, आज जो चर्चा हुई है वो पार्लियामेंट के 75 वर्षों का जो संसदीय सफ़र रहा है उसकी अचीवमेंट्स पे, उसकी मेमोरीज पे, उसकी लर्निंग्स पे, उस पे ये शुरू हुआ है। और अलग अलग सांसद जो अपनी बात कह रहे हैं वो जो इसके ऊपर जो डेलिब्रेशन है, जो चर्चा है, जो भाव अभिव्यक्ति है सांसदों की, वो नए संसद भवन में भी जारी रहेगी। जो नए संसद भवन का लोकसभा चैम्बर है, राज्यसभा चैम्बर है, और कार्रवाई वहाँ पे लोकसभा की 1:15 बजे दोपहर बाद और 2:15 बजे जो है वो राज्यसभा में शुरू होगी। मैं एक बात बड़ी कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जब मैं आज सांसदों से और केंद्रीय मंत्रियों से यहाँ बात कर रहा था तो वो भी उनके लिए भावुक क्षण था। कई जो सांसद हैं वो 5 बार के सांसद चुन के आए हैं, 6 बार के सांसद चुन के आए हैं, कई लोग 30-35 वर्षों तक इस संसद में रहे, तो सबका लगाव हो जाता है। और प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में हर एक सभी का धन्यवाद किया। मनोज जी, जैसे उन्होंने सांसदों की बात की कि 7500 सांसद रहे हैं, जिसमें 600 महिलाएं भी रही हैं। उन्होंने पानी देने वाले जो कर्मचारी रहते हैं उन तक की बात की, माली को याद किया, अधिकारियों को याद किया, पत्रकारों को याद किया खासकर, क्योंकि आप भी संसदीय जो बीट है बहुत लंबे से कवर करते रहे मनोज जी। तो उन्होंने बहुत कहा कि इस देश में इतने लंबे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, जब टीवी नहीं था, जब बातें जो है ऑडियो विजुअल सिस्टम नहीं था, तब पत्रकार ही जो है बातों को वहाँ पे पहुंचाते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, और प्रिंट के जरिए और बाद में इलेक्ट्रॉनिक के जरिए वो लोगों तक पहुंचती थी। तो उन्होंने उन सभी पत्रकारों को जो अब नहीं रहे या अभी हैं भी, तो उन सबको याद किया।
तो ये उन्होंने ये भी कहा कि जब हम पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होते हैं तो पुराने घर से लगाव तो रहता है, क्योंकि नई चीज़ों में सेटल होने में समय लगता है, तो वैसा ही भाव जो एक मनुष्य का भाव रहता है उसकी उन्होंने लगातार चर्चा की। तो Right, you're right, Pawan. And सांसद भी इसी तरह से भावुक Mr. नजर आए। Mehtab a little while ago was telling us about how it was more like a valedictory speech wherein the Prime Minister not just spoke about the glorious journey of the Indian Parliament over the last 75 years, he also mentioned the contributions, he hailed the contributions of his predecessors, the former Prime Ministers, right from Pandit Nehru to Lal Bahadur Shastri to Indira Gandhi to Dr. Manmohan Singh. And he didn't forget to also thank the support staff, which means the backbone of the proceedings, the secretariat staff, the gardener, so everyone who's contributed towards this glorious journey of the Indian Parliament. So we'll continue to delve into what was discussed in both houses today, in both the Lok Sabha and the Rajya Sabha, when members of different political parties stood and spoke about this journey of India over the last 75 years. And now as we move from the old building to the new building, that move is supposed to happen tomorrow. What are the expectations from not just the elected members of parliament, but also of the common people from the elected representatives? So to discuss these aspects, we have a different set of panel now. We're being joined in the studio by Mr. Deepak Prakash, Member of Parliament, Rajya Sabha. He represents the BJP. And Mr. Bharat Margani, he represents the YSR Congress Party in the Lok Sabha. Thank you to both our guests for joining us on this special telecast. Mr. Prakash, to you first. It was a very, very historical day in terms of how we are moving from the old parliament building to the new one. सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने बड़ा इम्पैक्टफुल स्पीच दिया एक लीडर ऑफ द हाउस के तहत जब उन्होंने लोकसभा में बोलना शुरू किया, और सबसे अच्छी बात रही कि उन्होंने हर किसी को आज याद किया, अपने सारे प्रेडेसेसर से लेकर जो सपोर्ट स्टाफ है, खास करके हर किसी को धन्यवाद दिया और उम्मीद की कि जिस तरह का हमारा ये सफ़र रहा है वो अब आगे भी बरकरार रहेगा। देखिए, 75 साल के संसदीय गौरवशाली यात्रा को आज हम स्मरण कर रहे थे और उन पुराने स्मरण को भी याद कर रहे थे जिनके द्वारा गौरवशाली परंपरा वहाँ पर निर्वाह की गई थी। लोकतंत्र को मजबूत करने में सब लोगों की भूमिका है और हम सबको जानते हैं कि भारत वर्ष एक प्राचीन संस्कार और संस्कृति में ही लोकतंत्र निहित है, उसकी जड़ें जो है सो लोकतंत्र। आप वैशाली परंपरा की बात कर लीजिए, अब वेद की परंपरा में बात कर लीजिए, तो सभी जगह पर लोकतंत्र हमारे यहाँ पुरानी परंपराओं में था। और आज जो हम लोग इस क्षण को याद कर रहे हैं तो संसदीय जो यात्रा है वो आज 75 साल के गौरवशाली यात्रा को याद कर रहे थे और हम सबको जानते हैं कि उसमें सबकी भूमिका है। अगर 6500 संसदीय यात्रा में शामिल जनप्रतिनिधियों का योगदान है तो 600 हमारी सम्मानित बहनें जो संसद सदस्य थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो साथ साथ में सभी जो वहाँ पर काम करने वाले, चाहे सचिवालय में हो, चाहे वहाँ जलपान कराने वाले हों, चाहे ड्राफ्ट करने वाले हों, चाहे सबकी भूमिका, उसमें प्रधानमंत्री जी ने सबको याद ही नहीं किया, उनको सम्मानित करने किया अपने शब्दों के माध्यम से, अपने हृदय के माध्यम से। यही तो दूसरे प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को अलग करता है। अब राज्यसभा से सांसद है, राज्यसभा में किस तरह की चर्चा रही उस पर आते हैं अभी, बट एक बार भरत जी, आई कम टू यू फर्स्ट. You witnessed various moods in the House. Elected members from various parties spoke at length about various aspects covering the journey of the Indian Parliament. How was it like? What were the highlights for you? And today, actually, it's an historic day. I must say, today is a historic day. And I must congratulate the government of Bharat to bring a new era of Indian politics. Because I'm really lucky to be a member in this 17th Lok Sabha to witness the new building and the old building. And the transition. Yes. And how many people will get this opportunity? Absolutely. If you could see, we can never miss this. But if God blesses us again, some kind of things has to happen. The parliamentary affairs or some kind of meetings has to happen in this old house also. And we are looking forward for this new building. And I wish the many new beginnings, the new journey
has to happen in this new parliament. As after the 75 years of independence, there are many important issues been missing. Dr. B.R. Ambedkar has dreamt of having an equal and social justice for each and everyone. Right now, we are about 140 crores of population. But in some parts, even though reservation is still there for scheduled caste and scheduled tribes, and backward OBC communities also are demanding for a kind of reservation that has to put forth in this the new parliament building that should make some kind of history in the Narendra Modi's era. It has to happen. And all the political parties are expecting the women reservation bill also. So in this new parliament building, in this tenure, if Honorable Prime Minister brings these two bills, the BC reservation bill and as well as the women reservation bill, he'll be remained in the history books forever. Just like Dr. B.R. Ambedkar, Mr. Narendra Modi ji also remains in the history books like such a tall leaders. So I wish in this tenure, if Honorable Prime Minister brings these both bills, and at the same time, when it comes to the BC reservation bill, the caste census has to happen. Unless and until if you get the caste census, you cannot go forward with the BC reservation bill. You're right, and let's hope these expectations are met in the times to come, because there's a lot of promise, there is a lot of hope among the new people. The Prime Minister said today that we've set out with a new vision, with a new direction towards a new approach to take New India to greater heights. But he also spoke about various other aspects to make our parliamentary democracy more inclusive and more representative, something that Mr. Bharat was also pointing out. Let's listen in to the Prime Minister. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी। पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा कि बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं, 50। लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया और ये राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। और इस विश्वास से कि हम भले आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है। इसका गौरवगान करने का ये अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई और उसने देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हमें चलाता है, हमारे संविधान दिया। और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमें मिला, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवी का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद करेगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए।
आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्री परिषद थी, बाबा साहब आम्बेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम ये जानते हैं कि भारत में बाबा साहब आम्बेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा? औद्योगिकरण होना चाहिए। और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई थी। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने, लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र हित में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था। So we'll continue to discuss further with the two distinguished guests who are with us in the studio after this very short break. Do stay with us. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम
जो संसद के विशेष सत्र पर है। जाहिर सी बात है आज दिन भर संसद की जो गौरवशाली यात्रा है, संसदीय यात्रा जो है, उसको लेकर पक्ष और विपक्ष की ओर से जो यादगार संस्मरण है उनको लेकर चर्चा हुई। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और अटल बिहारी वाजपेयी सहित तमाम प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए बताया कि किस तरह भारत की जो संसदीय यात्रा है वो आगे बढ़ी है, मजबूत हुई है और देश के विकास में इस संसद का क्या योगदान रहा है, कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग पहलू संसद के सामने, देश के सामने रखे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इस मौके पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। माननीय सदस्यगण, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी है भरी है। इस आयोजन की सफलता ने प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर दिया है। इसने वैश्विक स्तर पर देश की नेतृत्व की क्षमता को एक नया आयाम दिया है। मैं इस आयोजन को आम जनों का आयोजन बना देने की माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना करता हूं। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें हुई है, जो अभूतपूर्व है। दुनिया भर से आए 42 प्रतिनिधि मंडलों के साथ G20 नई दिल्ली लीडर समिट अपने आकार, भव्यता और प्रभाव में अभूतपूर्व था। इससे विश्व को भारत की विविधता, लोकतांत्रिक शक्ति और प्रतिभा को देखने का अवसर मिला है। भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, कार्य उन्मुख, निर्णायक और जन केंद्रित रही है। It gives me immense pleasure to congratulate the entire nation at the successful conduct of G20 New Delhi summit that has filled heart of every Indian with pride and raised the leadership stature of the country at global level. I laud the Prime Minister's vision that made it truly people's G20. More than 200 meetings in 60 cities covering all the states and union territories of India is unprecedented. At the same time, the G20 New Delhi Leadership Summit with 42 delegations was one of the largest in size, scale and scope. This has provided opportunity to the world to experience richness of diversity, democracy and talent of India. India's G20 presidency has proven to be inclusive, ambitious, action-oriented, decisive and people-centric. The outcomes of the G20 Leaders Summit are transformational and would contribute to the reshaping of the global world order in the decades ahead. Prime Minister's vision and guidance, the New Delhi G20 Leaders Declaration was adopted unanimously and with consensus, including on difficult issues. Honorable members, next month, our Parliament would have the honor to host the Parliament 20 Forum as part of our G20 presidency. I request each member of this august House to participate in welcoming the world to the mother of democracy and building on the theme Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. I am confident that this august House will join me in commending Prime Minister's leadership
in recognizing the enthusiasm of the people of India and appreciating the contribution of all organizations and individuals on this historic achievement. Father of our Constitution, he suggested that political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity, which are not to be treated as a separate items in the Trinity. They form a union of Trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Equality cannot be divorced from liberty. Liberty cannot be divorced from equality. And nor equality and liberty can be divorced from fraternity. Now we need the mantra of Baba Saheb Ambedkar, the mantra of Jawaharlal Nehru and other stalwarts who have made this parliamentary democracy glorious for us to be remembered again and again. जाहिर तौर पे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और G20 के जरिए भारत की इस लोकतंत्र की ताकत को दुनिया ने देखा भी समझा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के जरिए दुनिया को इसको बताया भी और समझाया भी। जाहिर तौर पे अमृत काल में जब भारत संसदीय यात्रा का एक तरह से अपना अगला अध्याय लिख रहा है, नया अध्याय लिख रहा है, तो G20 की सफलता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरी सहयोगी प्रांजलि इस समय संसद भवन परिसर में है। प्रांजलि, आज क्या कुछ खास रहा? जाहिर सी बात है पक्ष और विपक्ष की ओर से कई अच्छे संस्मरण सुनने को मिले। भारत का लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ है, कैसे आगे बढ़ा है, 75 साल की जो संसदीय लोकतंत्र की यात्रा है उसका क्या संदेश है, दुनिया ने उस लोकतांत्रिक ताकत को देखा भी है। आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ समझा आज आपने? देखिए, अगर आज की हम बात करें तो चर्चा जो सदन में हमने सुनी है वो बिल्कुल एक तरफ है, लेकिन आपने बहुत सही कहा है। और निश्चित तौर से अगर प्रधानमंत्री के वक्तव्य को हम लें तो मैं ज़रूर ये लाइन जोड़ना चाहूँगी जो अब आज उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि ये सत्र छोटा ज़रूर है लेकिन ये सत्र बहुत ऐतिहासिक है जी, और बहुत रोना गाना चलता रहेगा। ये भी उन्होंने अपनी लाइन में कही, हालांकि एक हम कह सकते हैं कि एक व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने कहा है, लेकिन देखिए कितना सही कहा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन जो हुआ है उसको क्यों ना माना जाए। हम क्यों ना माने कि G20 की सफलता को पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने माना। जिस तरीके से भारत ने प्रेसिडेंसी की G20, हम मून मिशन की क्यों ना हम बात करें। और निश्चित तौर से आज का दिन बहुत ऐतिहासिक, कल के दिन का भी हम इंतज़ार करेंगे। जो दो भवन हैं जिस परिसर में इस वक्त हम खड़े हैं और जहां पर इस वक्त मैं यहां पर खड़ी हूं, निश्चित तौर से एक अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। दो भवन, एक जो है वो इतिहास को समेटे हुए है और जो दूसरा भवन है वो 75 साल के इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये दोनों भवन हम इसे नई और पुरानी अगर ना कहें तो बेहतर है। मुझे लगता है कि ये पूरक हैं एक दूसरे की, जिसका इंतज़ार हम कर रहे थे। और प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने, याद होगा मनोज जी, टीना, आज जिस तरीके से उन्होंने चर्चा की कि विघ्न हरता है भगवान गणेश, और हम गणेश चतुर्थी का दिन हम इसके चुन रहे हैं। जब शुरुआत यहाँ से कल होगी, लेकिन जब हम वहाँ पर नए संसद भवन की ओर हम रुख करेंगे तो ये पक्ष और विपक्ष नहीं होगा। जब हम जाएंगे तो निश्चित तौर से ये जो हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो देश के जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जनता की उम्मीदों के साथ में नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। और निश्चित तौर से जब जनता हमें देखेगी, जब सुनेगी, तो उन्हें पूरा भरोसा है कि जो बातें छूट रही हैं, जिन बातों पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, तो वो सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के आज का जो दिन है, मुझे लगता है कि हम इसे बहुत आयाम में बहुत हम इसे कारगर मान सकते हैं। प्रधानमंत्री का वक्तव्य हो या फिर विपक्ष ने जो कुछ अगर व्यंग्य किया हो वो हो, लोकसभा में जिस तरीके से हमने देखा कि 75 साल के बिल्कुल एक टाइम
जी प्रांजलि जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोकसभा और राज्यसभा में आज दिन भर जो चर्चा हुई उसका जो सार है वो ये है कि देश का जो लोकतंत्र है वो सहमति के साथ, मतभेद, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो शक्ति मिली है वो इस संसद से मिली है। लेकिन जनता की उम्मीदों की बात होती है तो जनता की उम्मीदों अपने सांसद सदस्य यानी जनप्रतिनिधि से होती है, और जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं, सांसद सदस्य ये चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, उन्हें बोलने का अधिक से अधिक मौका मिले। दीपक प्रकाश जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, राज्यसभा से सांसद हैं। दीपक जी, मैं आपसे इस बात को जानना समझना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर राज्यसभा की मैं बात करूं, कुछ इस पे भी चर्चा हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी लगातार इस बात को कहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र अगर मजबूत होगा तभी होगा जब सदन में अधिक से अधिक चर्चा हो, सदस्य उस चर्चा में भाग लें, सदन में अवरोध ना हो, विघ्न ना हो। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, एक सांसद के रूप में जी मैंने जो अनुभव किया है, कटु अनुभव किया, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। एक जनप्रतिनिधि से जनता, उस क्षेत्र की जनता की उम्मीद होती है कि उनकी भावनाओं को, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को सदन में रखा जाए और उन समस्याओं का निराकरण हो। लेकिन दुर्भाग्य से जो परिस्थितियां पैदा हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्य है। हम जैसे लोग जब किसी विषय को रखना चाहते हैं, देश के सामने ऐसे कई मुद्दों को रखना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को, मुद्दों को रखना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वह वास्तव में हम सब लोगों के हृदय में आघात लगता है। और ये आप लोगों के माध्यम से, आज तो मीडिया के माध्यम से जनता देश की जनता देख रही है, इसलिए ऐसे समय में विचार करने की ज़रूरत है कि हम जब नए भारत की कल्पना कर रहे हैं, विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, हम आज 5वें सबसे बड़े आर्थिक अर्थव्यवस्था के हम हकदार बने हैं। आने वाले समय में और कई पायदान हमको आगे बढ़ना है, गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, तो चर्चा तो होनी ही चाहिए। और चर्चा में जो अवरोध पैदा करते हैं, उन दल के सांसदों से जब व्यक्तिगत बात होती है तो वो भी उससे सहमत नहीं होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की जो भूमिका हुई है, लगातार किसी न किसी ऐसे मुद्दे जिसको आम जनता से कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे मुद्दे पर वो संसद के काम को अवरोध पैदा करते। देश के जो गरीब, गाढ़ी कमाई है गरीबों की, जिसके बलबूते पर हम सब लोगों को वेतन मिलता है, सदन चलता है, उन सारे पैसे को जिस ढंग से वहाँ की जनता की आकांक्षाएं होती है कि उसका सदुपयोग हो, लेकिन जिस प्रकार से समय भी बर्बाद होता है, देश के जनता के पैसे भी बर्बाद होते हैं, ये सवाल आज मेरे दिल दिमाग में है। इसलिए मैं इस विषय को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि विपक्ष की जो सकारात्मक भूमिका है वो आज देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से उनको नकारात्मक रूप से वो आज खड़ा हो रहे हैं। Bharat ji, you know, when you have representatives from different political parties, there will always be different perspectives. There will be dissent on issues, and that perhaps strengthens our democracy. There has to be some kind of check and balance. But that dissent should not be replaced by disruption, and that is something that young members of parliament have to ensure, because it is eating away precious time which is meant for you also to be able to raise issues of people's interests. Going forth, now we are, going to write a new chapter in this glorious history of Indian Parliament. What do you think is the need of the hour to change that kind of disruption that is taking place, the precious time that is being lost, and not just time, precious money is also being lost? So, well said. As you rightly mentioned, there should be a constructive criticism. Right. The opposition should raise the issues, what the government is failing to do it. So the opposition's role should be a constructive criticism, so that our people are watching. So we have sent here for the well-being of the people of the nation. And at the same time, these all 10 years, I would certainly say this is Narendra Modi ji's era. The 10 years, he has done a phenomenal job when it comes to the recent the Chandrayaan 3. It is really appreciable. None of the countries across the globe haven't succeeded this, and Narendra Modi ji's government has made it. At the same time, and now he is a world popular leader. The G20 happened, and different country presidents and prime ministers visited.
and our country is different from the world. We have a rich culture, heritage, and at the same time, the notion is really great when it calls to Vasudhaiva Kutumbam, one earth, one family, and one future. And it really gives immense pleasure for all the people across the globe to explore our country. And I would certainly say the people of different representatives came here and they had the memories cherished for their lifetime. And at the same time, and today, the Honorable Prime Minister also mentioned, in this very house, in this, the shallow of the democracy, we happen to divide some states. And each and every state has celebrated. When it comes to Chhattisgarh, Chhattisgarh was bifurcated from the old state, and the old state also celebrated and the new state also celebrated. When it comes to Uttarakhand, the Honorable Prime Minister also mentioned in this very house today itself. And Uttar Pradesh has celebrated and Uttarakhand has celebrated and Jharkhand has celebrated. But when it comes to my state of Andhra Pradesh, but we didn't celebrate it. But it was happened in the Congress tenure, and the rest of the 3 states, perhaps it was happened in the BJP's tenure. But when it comes to my state of Andhra Pradesh, the Telangana has got benefited. As the Honorable Prime Minister rightly mentioned, with this, the Parliament House, all the people have invested our sweat and blood in this Parliament House to make it really a great house. Likewise to my state also, we have invested our sweat and blood in the state of Telangana and in Hyderabad. Okay, let's hope in the times to come all of but these... I mentioned when the Honorable Prime Minister was speaking, and we have mentioned that also, but Andhra Pradesh state didn't celebrate it. But once the Congress party has unscientifically bifurcated, now it's the turn of the ruling party, which is BJP, should honor the promises of the AP Reorganization Act of 2014, which was happened in the Congress tenure. That's wherein the Prime Minister also quotes that, the fact that there have also been some mistakes that we have made in the past, we have to learn from it. But now the need of the hour is that we have to collectively work together to take our nation to greater heights. जी बिल्कुल टीना जी, कुछ इतिहास में जो कुछ हुआ है उससे सबक लेते हुए आगे चलने का ही संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि जो कमियां रह गई हैं उसको आगे और कैसे बेहतर किया जाए, लोकतंत्र हमारा और कैसे मजबूत हो, हमारी संघीय व्यवस्था वो कैसे मजबूत हो, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी अलग अलग मंचों से लगातार संदेश देते रहे। लेकिन आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। जाहिर तौर पर हर सांसद सदस्य के अपने संस्मरण हैं। इस जो हमारा संसद का पुराना भवन है, जाहिर तौर पे आज उसको अलग अलग मंचों से सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी सदस्यों ने साझा किया, अपने सदस्यों के साथ भी। और हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा ने भी बीजेपी सांसद ढाल सिंह बिसेन जी से इस संबंध में बात की। आइए सुनते हैं उनके क्या संस्मरण। संसद का विशेष सत्र चल रहा है और अब संसद के इस पुराने भवन से लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस अब संसद के नए परिसर में, नए भवन में चालू होगा। सांसदों से हम जान रहे हैं इस विषय पर उनके राय, उनके अनुभव जो पुराने भवन से जुड़े हुए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश से सांसद ढाल सिंह बिसेन जी हैं। सर, ये बताइए, आप इस पुराने भवन में चुन के आए और अब आप नए भवन में जाएंगे, किस तरह का आपका अनुभव है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से पुराना भवन जिसको हम वर्षों तक टीवी पर भी देखते थे, पहली बार मैं चुन कर के आया, तो इसकी भी एक सुखद अनुभूति है। देश के 75 साल तक लगातार लोकसभा में हुआ, पर समय के अनुरूप जब मांग बढ़ती चली गई, नई नई सुविधाएं, ना सारी चीज़ें होना है, तो ऐसी स्थिति में यह पुराना भवन उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता था और इसीलिए वर्षों से मांग चल रही थी। लगभग मैं जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि 96 से कि नए सांसदों को नई सुविधाओं के हिसाब से विस्तार हो, यहाँ बैठने का, करने का बहुत सारी परेशानी आती थी। कंफर्टेबल सीट्स नहीं होती थी, 16 लोगों के बीच में बैठना बड़ा कष्टप्रद लगता था। और इन्हीं सब बातों को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के, जब हम 75वें साल के बाद हम अमृत भारत की योजना पे आगे बढ़ रहे हैं, तो सांसदों के लिए एक आधुनिक सुख सुविधा के साथ और जब भविष्य के लिए जब परिश्रमण के बाद जब सीटें बढ़ेंगी तो उनके अनुरूप एक सुसज्जित आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ में इस भवन का निर्माण हुआ, तो निश्चित रूप से हमें खुशी होगी। वहाँ पर हम लोगों को एक नए स्वरूप में काम करने का अवसर मिलेगा। जब डिजिटल भारत हो गया, डिजिटल हमारे इस भारत में पूरा हमारा लोकसभा भी डिजिटलाइज हो गया है,
तो उसके लिए इस भवन में सुधार करना उतना संभव नहीं था, इसलिए नए भवन में सारी सुविधाएं, तो निश्चित रूप से खुशी हो रही कि उस नए भवन में हम जाएंगे, क्योंकि यह पुराना भवन भी हमारे लिए यादगार रहेगा, पर निश्चित रूप से नए भवन में जाने का एक सुखद अनुभव होगा। तो सांसद जी बता रहे थे कि जो पुराना भवन है उससे यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन चूंकि जो संसद भवन का नया भवन है उसमें तकनीकी तौर पर उसे सुसज्जित बनाया गया है और सांसदों को कार्य करना वहां आसान होगा, तो वहां जाने का एक अलग जोश भी है। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन जो है नए पुराने से नए का, इसको लेकर सांसद काफ़ी उत्साहित है। जाहिर तौर पर जो भारत की संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा रही है उसका यह महत्वपूर्ण क्षण है, ऐतिहासिक पल है कि जब पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर हमारी लोकतंत्र यात्रा एक कदम और आगे बढ़ेगी। जाहिर तौर पर इसको लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं, जारी हैं, और इस संबंध में हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा ने बीजेपी सांसद विजय कुमार दुबे से भी बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। संसद का विशेष सत्र चल रहा है और संसद में 75 साल के संविधान सभा से लेकर अब तक की हमारी संसदीय यात्रा पर चर्चा है और पुराने भवन से नए भवन में जाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में हम सांसदों से उनकी राय, उनके अनुभव जान रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी से सांसद विजय कुमार दुबे हैं। इनसे जानते हैं, सर आप जब चुन के आए तो इस पुराने भवन में आए और अब आप नए संसद भवन में जो अत्याधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित है उसमें जाने वाले हैं, किस तरह का आपका यहाँ का अनुभव है और कैसी वहाँ के जाने के बारे में सोच है? देखिए, हम लोग मान के चल रहे हैं, आज माननीय मोदी जी ने अपने संबोधन में बोले भी कि हम लोग एक इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गए इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं, जबकि हमारे पुराने संसद भवन के भी हम लोग सदस्य रहे और अब कल से नए संसद भवन के में हम लोगों की सहभागिता रहेगा। तो ये बहुत ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल के हम खुद साक्षी हैं। इस बात का बहुत ही गौरव अनुभूत हो रहा है हम लोगों को। तो सांसद जी बता रहे थे कि गौरव की अनुभूति हो रही है। वहाँ पे अगर हम सांसद जी बात करें तो सांसदों के लिए उनके सीट के सामने ही कंप्यूटर लैपटॉप की व्यवस्था है, जिसमें आपकी जितनी भी हमारी संविधान की अधिसूचित भाषाएं हैं उसमें आप कार्यसूची अन्य सामग्री ले सकते हैं तकनीक के तौर पर, और जो वहाँ पर संख्या बनाई गई वो ज़्यादा है। तो क्या वो आप एक सांसद के तौर पर आपके लिए लाभकारी होगा? जी, बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि ये जो डिजिटल इंडिया को जो अभियान माननीय मोदी जी ने इस देश की धरती पर चलाया है, उसकी सुविधा सांसद को मिले सदन के कार्रवाई के अंतर्गत, और ये एक बहुत ही उपयोगी सभी सांसद के लिए होगा। और देखिए, यहाँ पुराने में चूँकि पहले का है, 75 साल के पहले का, तो इस सदन में बैठने में भी हम लोग को दिक्कत हो रहा था। किसी के तो स्थान खंबे के पीछे पड़ जा रहे थे। तो अब वहाँ पर मैंने तो उद्घाटन में देखा है कि एक बहुत ही खुले आसमान में लगता है कि हम लोग हैं, और बहुत ही उपयोगी होगा, हर सांसद के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि डिजिटल की हर व्यवस्था है और जिससे कि हम लोग कार्रवाई में अपनी भूमिका का निर्वहन और अच्छे से कर सकें। तो नए जो संसद भवन का जो नया परिसर है, नया भवन है, उसके अंदर तकनीक का ख्याल रखा गया है, साथ में और भी तमाम ऐसी सुविधाएं वहां उपलब्ध है जहां सांसद जब बैठेंगे तो जनता के मुद्दों को निर्भीक और तकनीक के उपयोग से अच्छी तरह उसका उपयोग कर सकते हैं। So, Bharat ji, time allows us to take one last comments from both of you. I'll begin with you. You know, in the new Parliament building, as a lot of our MPs have said, we've seen also, we've been able to cover a lot of new features of the new Parliament building. So there's going to be optimum space, there will be better technology. In terms of architecture also, it's extremely appealing. But the right time to ask the question is, how do we ensure that it becomes the fountainhead of the aspirations of 140 crore people? We are at a very crucial stage. The Prime Minister has time and again called for every stakeholder to work together to make India a developed nation by 2047. That is something that you will also resolve to, and you'll take a pledge tomorrow when you stand near the Central Hall for that group photograph. So it's upon youngsters to take it upon themselves now. It's a promise. How do we ensure that this new Parliament building becomes that fountainhead of the aspirations, the dreams of 140 crore Indians? We certainly admire it. As Honorable Prime Minister mentions that 2047, we have to be a Vishwa Guru.
definitely in this temple of democracy, in this new building, I presume that will cross many leaps and bounds with new laws and the amendments of the new laws. And definitely in this the span of 10 years, the world's largest economy when it comes to India stood at 5th place. And definitely by 2047, with the collective responsibility of all the citizens of the country, we definitely will achieve that particular place of being at the top on the global pedestal. And all youngsters should come forward to make some revolutionary reforms when it comes, especially as a parliament member. Right. We've got chosen by the people, and 100% with the true spirit, we certainly work for the admirations of the people under the able leadership of all the tall leaders. We certainly follow all the democratic rules and principles. As India happen to be in the future, definitely we will be the Vishwa Guru. Certainly we are dreaming it and will achieve it. जी बिल्कुल टीना, आज अगर बात की जाए, आज जो चर्चा हुई लोकसभा में या राज्यसभा में, उसमें एक बात, या सदन के बाहर की भी मैं बात करूं, महिला सशक्तिकरण की बात हुई, लोकसभा में भी हुई और राज्यसभा में भी हुई। किस तरह भारत की जो संसदीय यात्रा है उसमें महिलाओं की जो भूमिका रही है, किस तरह महिला सशक्तिकरण पिछले 75 सालों में हुआ, और जो आधी आबादी के अधिकार हैं उसको लेकर भी बात हुई। अलग अलग पक्षों से हुई, सत्ता पक्ष से भी हुई, विपक्ष से भी हुई, और संसद के भीतर बाहर भी आज खासी चर्चा हुई। दीपक जी, इस चर्चा का क्या संकेत है, क्या मायने हैं इसके, क्या संदेश है इसका? आज की बैठक को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिंहालोकन का था। जी। पिछले कालखंड में हमने इस भवन में क्या क्या किया, आगे हम क्या करने वाले हैं, आज का भारत और आने वाले समय का भारत कैसा हो। हम जानते हैं कि पुराने भवन में हम सब लोगों ने एक इतिहास रचने का काम किया है। पुरानी परंपराओं से अगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर बात की जाए तो वन नेशन वन टैक्स, धारा 370, 35 से ऐसे कई चीज़ों को एक समाप्त करने का काम किया। देश की आत्मा को उन्होंने समझने का काम किया। लेकिन जहाँ तक आपका प्रश्न है महिलाओं के संदर्भ में, ये सच है, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जो अपनी पार्टी के अंदर, जो पार्टी की जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्टी को चलाने में, उसमें पूरी तरह से उनका आरक्षण है। पार्टी के अंदर के आंतरिक लोकतंत्र हमारी महिलाओं बहनों के साथ चलते हैं। जहाँ तक संसदीय कार्य प्रणाली की बात है उसमें महिलाओं को और अधिकार मिले, ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से लेकर अब तक की जो यात्रा है, नहीं, आपको बिल ब्रिंग करना तो ये जो है हम उसके समर्थक हैं। और पार्टी की प्रतिबद्धता भी है कि महिलाओं को और से और अधिकार संपन्न बनाया जाए। और नारी सशक्तिकरण के मामले में तो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी, बहनें आगे बढ़ेंगी, बेटियां आगे बढ़ेंगी, तब देश आगे बढ़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प था बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। Absolutely, and that was something that was the thrust of G20 also, Manoj ji, if you बिल्कुल। recall, that India has moved from women's development to women-led development, and that is something that we must, increase the pace of in the times to come to achieve development in the right terms, as he said. So individually, parties may be promoting women candidates. The need of the hour is to have a bill, the women's reservation bill. Bharatji, time is running out. We'll have to wind up the program. The most important thing is it's been a glorious day today, because in both houses there have been discussions in which members of different parties participated, spoke about the glorious journey, the achievements, the lessons learned in this 75-year journey of the Indian Parliament. Tomorrow again it's going to be a special day, because before heading to the new building, before the sitting moves to the new building of Parliament, all members will gather in the Central Hall of Parliament. So at the same time, while they will commemorate the rich legacy of the Indian Parliament, the parliamentary democracy, factors that have strengthened Indian democracy, they will also collectively resolve to make Bharat a developed nation by 2047. That's the target that we all have to work together towards over the next 25 years. So that having been said, we'll have to wind up the program. Thank you to both our guests for joining us on this special telecast. And to you viewers, thank you very much for your time as well.